And today we have studied this one. There is a partial concept is moved. Yes, this one. And this is the partial. We have a highlight this one. Here the highlighter also said. We explain one time more so that everyone can easily get this point and partial. What is a partial? The process of a deriving string for a given grammar is called partial. Okay. Based on a given grammar, whatever we have generated the string, that is known as a parsing, and the parsing will be performed by the parser. Who's the responsibility to perform the parsing? It is a parser. So right now we have a the type of a parser. What is the type of a parser? Okay, any type of a parser. First of all, understand the basic of this one. पार्सर से पहले हमें सिंटैक्स ट्री नहीं पढ़ना चाहिए था, सिमेंटिक नहीं, सिंटैक्स ट्री दैट इज ए मेथड जिसके थ्रू वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को जनरेट करता है. ठीक है, इट इज ए मेथड. जैसे हाउ वी कैन अचीव, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, लेट्स मी क्लियर योर डाउट फर्स्ट. देखिए, here what is the definition of this? The process how we can derive with the help of a syntax tree. Is it clear, Sivan? The process of deriving the string for a given grammar. Based on a grammar, how we can derive this one? With the help of a syntax tree or parse tree. That is a methodology. Okay, but what is the basic definition of this one? The process of deriving a string for a given grammar. Based on it, and how we can derive with the help of a parse tree or syntax tree. Both are the same. Are you get this point? Yes, sir. Okay, but here we have taken very, very basic definition so that everybody can easily understand. Okay? And this is a one who's the responsible for perform this parser. The parsing will be performed by the parser. Each time parser, the parsing operation performed by the parser. There are two kind of a approach used in the parser. Okay, here we have mentioned the parser so that you can understand what is a topic we have studied today. Okay, type of a parser. In a type of a parser, we have there are two kind of approach, and top-down parser, and okay, this underline is removed here. The name is the top-down parser, and second is the bottom-up parser. Remove this. Good. There are two kind of a approach we have a use, and first of all, basic definition is the same for all of you. If anybody says that this is the parser, what is either it is any kind of a parser, it is a top-down parser or bottom-up parser. What is the basic functionality of this one? Is that deriving the string? Is it clear by everyone? Basic functionality क्या होगी? If any kind of a parser is given, what is the basic functionality of this one? Deriving string. कैसे derive करता है? How it is used, the approach, the top to bottom, bottom to top, that is a different kind of a story. But main thing is that if any parser is given, what is the main functionality of this one? Deriving the string. कोई भी parser है तो वो क्या करेगा? String को derive करेगा. कैसे करेगा? With the help of a given grammar. Based on a whatever grammar is given, we are deriving the string. Either it is any kind of a parser, top down or bottom. Is it clear by everyone? कोई भी पार्सर है, बेसिक फंक्शनलिटी क्या है? स्ट्रिंग को डिराइव करेगा बेस्ड ऑन ए गिवन ग्रामर, जो भी ग्रामर दिया हुआ है. अब इसकी अलग अलग मेथोडोलॉजी है, वो हम पढ़ेंगे कि सर ये सिंटैक्स ट्री बनाता है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिराइव द सिंटैक्स ट्री, कैसे करता है, वो एक अलग स्टोरी है. बट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस वन? डिराइविंग द स्ट्रिंग. तो चाहे टॉप डाउन बॉटम बनाए या बॉटम अप बनाए, इन बोथ केस हमें क्या जनरेट होगा? स्ट्रिंग मिलेगा. ठीक है, बोथ जनरेट द स्ट्रिंग. But what kind of a approach, that is a different story. ठीक है. So the main focus is that how it is work. Now we have a try to understand what is a top down parser and what is a bottom up parser.
Is it clear till now? Everyone, it is clear to right now? Is it clear? Please respond. Is it clear by everyone? Yes, sir. Yes, good. Yes, Where is your energy level? Yes, You are sir. excited about the learning. Whenever I ask anything, you just respond quickly, either yes or no. Okay? Chalo. In a top-down parser, we have tried to understand. In a top-down parser, the tree started from the root. In a top-down parser, we here draw all these things. In a top-down parser, what kind of a in a top-down parser, we explain the top-down parser here. We have required some eraser also. Here, explain top-down parser. This here we have a student. First of all, telling you what is a top-down parser. We take some arrow, and let's take one example also. Take one grammar so that we can easily understand. I think here we have taken one grammar, and yeah, we have tried to explain the top-down parser. For the short form, we have a write like that: top-down parser. Is it clear by everyone? TDP, that means top-down parser. It is not a standard abbreviation. It is for the writing purpose I have used. In a top-down parser, we increase the size so that we can easily get this one. In a top-down parser, okay? And with the help of a one example, you can write in your notes. In a top-down parser, the parse tree start from the in a top-down parser, parse tree start at root and process to children. Please mention that. In a top-down parser, the parse tree I have mentioned. In top-down parser, parse tree start at root we have mentioned here. Okay. In top-down parser, parse tree start at root and proceed and proceed to children. Is it clear by everyone? In proceed to children. It is just simple definition. What is a top-down parser? We have mentioned here also. What is your TDP? That is a top-down parser. Is it clear? We have highlighted this. In a top-down parser, what is a main functionality of this? In the top-down parser, the parse tree started as root and proceed as a children. Let's take one example how it will perform. Okay. For example, here we have mentioned that as an example. As everybody mute your voice. आप लोग म्यूट करिए. Very good. म्यूट करिए किसी का ओपन है. That's why the noise will be reflected. And everyone, please mute your mic. Are you here? And we have take this grammar and A derived to A and B derived to B. And what is the definition of a top-down parser? Okay, we have a start. What kind of a string it is generated? Please tell me. Anyone? And because what is the main role of a parser? It is a generated string. This string is generated by this particular grammar. Is it clear? Yes. AB, string AB
generated by this particular grammar or not? Please respond. Yes sir. Good. Yes sir. Very good. And here we have used the top down approach. What is the main role of a top down approach? Try to understand here. Okay. Here we have a one job where derive how it is the top down approach. Here we have to take the S, because in a top down parser what is the definition? Parse start कहाँ से start करेगा? At a root. And कहाँ पे proceed करेगा? Proceed to the children. Everybody can understand. And this grammar is a given, because what is the definition? And we have started here. The process of deriving the string for a given grammar is called a parser. There are two kind of approach, and right now we have a try to understand what is this one. What is a top down parser? Okay. And in a top down parser, that means we have started at root and go to the children. And what is a string? Here we have a found based on this grammar, w is equal to ab. So here as derived to capital A, capital B, there are two kind of a variable, and I think there are two kind of a variable here associated. The capital A and here we have found the capital B. How we can generate this one? Anyone? Have you anybody doubt कि कैसे मैं ये AB कहाँ से मिल गया मुझे? Everybody clear this one? And after that we have put A and B. Why not I put A क्या? and mention here B here? Is it clear by everyone? We have generated this parse tree. Okay? We have derived this one A, AB, and AB. And whatever string here we found the based on this grammar we have find out the this string w is equal to AB. And based on a syntax tree we have also defined the same string. Are you know how to read this particular tree? In a data structure you have study all these things. Have you remember? अब भूल चुके हैं आप लोग. मैं बताऊं फिर से कैसे रीड करते हैं इसको? यस सर पता है. कैसे रीड करते हैं इसमें बताइए. इस रीड करने के 3 तरीके होते हैं. प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लाफर ट्री. तो प्री ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले लेफ्ट जाते हैं, फिर रूट को जाते हैं, फिर राइट जाते हैं. इन ऑर्डर में क्या होता है? रूट लेफ्ट राइट, और फिर पोस्ट ऑर्डर में राइट रूट लेफ्ट. ठीक है. सो अगर मैं ट्रेवल शेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एरो मैं ऐसे ले सकता हूँ. चलो मैं ट्रेवल करना बता रहा हूँ. ऐसे ऐसे क्या, ये एरो रखो यहाँ पे, एंड वी हैव मूव लाइक दिस वन, एंड व्हाटएवर द स्ट्रिंग इट इज जनरेटेड, ऐसे करके फिर यहाँ से करके यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे. वी विल फॉलो दिस काइंड ऑफ ए पैटर्न जनरली, दैट इज इन ऑर्डर ट्रेवल से. ठीक है, जैसा कि शिवेंद्र ने अभी बताया. ठीक, so we have to find out this one. So here we have to find the string. What kind of a string is it? A and B. And during the troubleshoot we have to find the string A and B. That is a same whatever here is the W is equal to A and B. So is it any syntax error here? क्या कोई मुझे syntax error यहाँ पे मिल रहा है? बताइए, थोड़ा सोच ले. Would you know how to check the syntax error or not? ध्यान से समझो. समझते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं.
हाउ वी कैन चेक द सिंटैक्स एरर। अभी हम सिर्फ इसको पढ़ते आ रहे हैं, अब यहाँ प्रैक्टिकली करके हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंटैक्स एरर है, ठीक है, सिंटैक्स एरर। हाउ देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शनलिटी ऑफ ए पार्सर? इट इज जनरेट द स्ट्रिंग, ठीक है। कैसे जनरेट करता है स्ट्रिंग को? बेस्ड ऑन ए ग्रामर। देयर आर टू काइंड ऑफ अप्रोच, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। बट ये मीनिंग ऑफ ए टॉप डाउन, रूट से स्टार्ट करेगा, चिल्ड्रन तक जाएगा। बॉटम अप का क्या है? चिल्ड्रन से स्टार्ट होगा, रूट तक जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है? सेम फिनोमिना के लिए एक ग्रामर लिया हुआ है एंड बेस्ड ऑन ए पार्सर हमने टॉप डाउन अप्रोच फॉलो किया। तो हमने रूट से क्या किया? और ये रूट एस derive the AB, we have derived this AB, and after that we have put this one AB. Why we have put this AB? Why not put here the something different string? Because हमने already ये assume किया है जो string इसको satisfy कर रही है, हमने एक string को ले लिया कि मुझे इसी के लिए पास ट्री डिराइव करना है, ये हमारा फिक्स है। हमने एक्सेक्ट, आपको भी एक सपोज टू फिक्स करना होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग करना होगा कि इस स्ट्रिंग के थ्रू क्या हम जनरेट करने वाले हैं। तो हियर आवर क्वेश्चन इज दैट कि how we can judge that कि given string is a syntax error or not। तो listen very carefully, अगर given हुए ग्रामर से, ध्यान से समझो, whatever grammar is given, we have a based on whatever grammar is given, if we have a able to generate the syntax tree, this is the known as the syntax tree और parse tree, दोनों इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Take I think this one is known as a कॉम्प्लेक्स हो गया, और सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस द नोन एज द सिंटैक्स ट्री और पार्स ट्री। इसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स ट्री और पार्स ट्री। अगर ये कहीं पे भी मेंशन है तो आप ये समझ लीजिए कि सिंटैक्स ट्री और पार्स ट्री को ये डिराइव करने के बोल रहे हैं, तो उसके दो ही तरीके हैं। कौन कौन से? आइदर वो टॉप डाउन अप्रोच में होगा या बॉटम अप्रोच में होगा, और ये स्ट्रिंग जनरेट करने की बात ये कर रहे हैं। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? ठीक है। सो हाँ, इट इज सिंटैक्स ट्री और पार्स ट्री। अगर गिवन ग्रामर के बेसिस पे, ये ग्रामर गिवन है, ठीक है, और w इक्वल टू ab इज अ स्ट्रिंग, इफ वी हैव एबल टू डिराइव द सिंटैक्स ट्री। अगर मैं ग्रामर, ये ऑब्जेक्टिव है, ये समझो, ये ऑब्जेक्टिव है, ये मेथड है, इस कॉन्सेप्ट को समझना आप। ये गिवन ग्रामर दिया हुआ है, दिस द ऑब्जेक्टिव, कि मुझे ab स्ट्रिंग डिराइव करना है इस ग्रामर की हेल्प से। और टॉप डाउन, हाँ, टॉप डाउन पार्सर का क्या मतलब है? वी स्टार्ट फ्रॉम रूट एंड गो टू द बॉटम। अगर ऐसा हो पा रहा है कि गिवन ग्रामर के बेसिस पे मैं ab स्ट्रिंग को डिराइव कर पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा सक्सेसफुली हो पा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये ध्यान से समझो। व्हाट इज द डेफिनेशन? वी हैव ऑलरेडी स्टडी दिस द ग्रामर एंड वी हैव ट्राई टू अचीव दिस वन। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड। जो भी ग्रामर गिवन है उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? जो स्ट्रिंग है जिसको मुझे फाइंड आउट करना, अगर मैं पास्ट ट्री डिराइव कर पा रहा हूँ तो दैट मीन देयर इज ए नो सिंटैक्स एरर। पास्ट ट्री और सिंटैक्स ट्री वी हैव सक्सेसफुली डिराइव, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि चिल्ड्रन में ए बी आ गया है, जो कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए था। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो देयर इज ए नो सिंटैक्स एरर। और अगर ये स्ट्रिंग डिराइव नहीं हो रही है, ठीक है, मे बी ग्रामर की वजह से, या हाँ, ये स्ट्रिंग डिराइव नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा? दैट इज ए सिंटैक्स एरर। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड। यहाँ तक सबको समझ में आया है? या कोई डाउट है किसी को? है तो पूछ लीजिए कि सर सिंटैक्स एरर कब होता है, कब नहीं होता है। अभी टॉप डाउन अप्रोच हम लोगों ने स्टडी किया। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। सिंटैक्स एरर कैसे फाइंड आउट, फिर से बता दो। सिंटैक्स एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंटैक्स एरर कैसे फाइंड, व्हाट्स योर गुड नेम? स्वप्निल गुप्ता। स्वप्निल को थोड़ा सा सिंटैक्स एरर में, और किसी को? सबको क्लियर हो गया सिर्फ स्वप्निल को छोड़ के?
अच्छा कौन है जिसको कुछ नहीं समझ में आया? सिर्फ सिंटैक्स एरर में दिक्कत है, बाकी सब क्लियर है? यस सर। चलो ध्यान से समझो, पहले ये समझो कि पहला जो फेज था, ध्यान से वो डायग्राम समझते हैं, फेज ऑफ ए कंपाइलर में, ठीक है, एकदम इनिशियल से स्टार्ट करता हूँ मैं। फेज ऑफ ए कंपाइलर में क्या था, जो भी सोर्स कोड हम लिखते थे वो कहा जाता था, लेक्सिकल एनालाइजर पे जाता था। लेक्सिकल एनालाइजर पूरे सोर्स कोड को टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट करता था, और वो टोकन कहाँ से होता था, सिंबल टेबल में, ठीक है। अब जो टोकन है, ध्यान से समझो, जो टोकन है, अब वो सारे आउटपुट किसके पास जा रहे हैं, सिंटैक्स एनालाइजर। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स एनालाइजर परफॉर्म करता है वो किसकी हेल्प से करता है, पार्सर की हेल्प से करता है, ठीक है। सो यहाँ पे टुडे वी हैव स्टडी दैट कि व्हाट इज अ पार्सर। पार्सर क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ ए डिराइविंग स्ट्रिंग ऑफ ए गिवन ग्रामर। जो भी ग्रामर दिया हुआ है उसकी हेल्प से जो स्ट्रिंग को डिराइव करता है कोई भी पार्सर हो, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्सिंग बोलते हैं। और जो इस काम को करता है, पार्सिंग को, जो इस पार्सिंग को करता है उसको क्या बोलते हैं, पार्सर। देखिए पार्सिंग क्या है, पार्सिंग इज ए प्रोसेस विच डिराइव द स्ट्रिंग। पार्सिंग एक प्रोसेस है जो कि गिवन ग्रामर की हेल्प से क्या कर सकता है, स्ट्रिंग को डिराइव करता है। तो देयर आर टू कैटेगरी ऑफ दिस वन। दो अप्रोच हैं जो हमें किसके लिए यूज होते हैं, स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए यूज होते हैं। कौन कौन सा अप्रोच है? अगर कोई हमसे पूछे कि ये पार्सर करता क्या है, देखिए पार्सर मेनली परफॉर्म करता है पार्सिंग करता है सर। और पार्सिंग क्या होता है, पार्सिंग स्ट्रिंग को जनरेट करता है, स्ट्रिंग को डिराइव करता है। डिराइव जनरेट बोथ आर सेम, ठीक है। स्ट्रिंग को जनरेट करता है, डिराइव करता है। कैसे करता है, बेस्ड ऑन ए गिवन ग्रामर। जो भी ग्रामर दिया हुआ उसके बेसिस पे क्या करता है, स्ट्रिंग को जनरेट करता है। अब अगर ये चाहे वो टॉप डाउन हो या बॉटम अप हो, दोनों, क्योंकि दोनों क्या है, पार्सर है, तो पार्सिंग के बेसिक डिफिनेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। पार्सिंग का बेसिक डिफिनेशन क्या है कि स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे, ठीक। अब टॉप डाउन का क्या मतलब है कि हम रूट से स्टार्ट करेंगे, बॉटम तक जाएंगे। ये टॉप डाउन अप्रोच हुआ। बॉटम अप का क्या मतलब है कि रूट से ही हम स्टार्ट करेंगे, मतलब इस स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, चिल्ड्रन से लेकर रूट तक जाएंगे, ठीक। तो ये चीज समझ आई कि ये ग्रामर है, ये स्ट्रिंग मुझे जनरेट करना है। तो ये कैसे पता करेंगे कि गिवन जो सिंटैक्स है कि गिवन ग्रामर में सिंटैक्स एरर है या नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर हम सिंटैक्स ट्री सक्सेसफुली बना लेते हैं, ध्यान से समझो, हाउ वी कैन चेक। हाँ स्वप्निल, फोकस हियर, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं ये कैसे पता पाऊंगा कि किसी भी सिंटैक्स एरर है या नहीं है। अगर मैं, पहले बेसिक डिफिनेशन सुनिएगा, अगर मैं सिंटैक्स ट्री और पार्स ट्री डिराइव कर पा रहा हूँ, ध्यान से समझो, if we have a successfully derived this one syntax, if you have successfully derived the syntax tree, that means there is no syntax error। यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ syntax, आप पूरा लिखेगा, मैं लिख दिया हूँ syntax के साथ में लिखता हूँ error, ठीक है। अगर string सक्सेसफुली बन जा रही है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे error लिख रहे हैं, if syntax tree successfully derived, there is no syntax error। is it clear? if you have unable to derive the syntax tree, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, if you have unable to derive the syntax tree, that means there is a syntax error। इसको समझो, अगर सक्सेसफुली डिराइव होता सिंटैक्स एरर है, नहीं है, समझ में आ रहा है सर? इसीलिए मैं डाउट कंफ्यूज मत हो सर। इसमें हमने स्ट्रिंग कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसमें w=ab है कि इसके लिए हमें सिंटैक्स ट्री बनाना है। अभी पढ़ेंगे, इसकी पूरी एल्गोरिथम है, अभी ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है सर। बट सिंटैक्स एरर चेक करने से पहले हमारे पास कोई स्ट्रिंग तो होनी चाहिए जिस पे हम लोग चेक करेंगे, तो w=ab हम लोग को गिवन होगा उसके अंदर। हाँ, सिंटैक्स एरर चेक करने से पहले सर अगर सिंटैक्स एरर चेक करना है तो जो स्ट्रिंग दी होगी, कैसे, ये सर जो वो स्ट्रिंग दी होगी उसको पार्स ट्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो सर क्या वो स्ट्रिंग पहले से दी होगी कि इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके चेक एग्जैक्टली करना है? देखिए, अच्छा सर, तब क्लियर। हाँ देखो, वो स्ट्रिंग आपको दी होगी, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी भी एग्जांपल में वो नहीं दिया है, अब क्वेश्चन ये होता है दिया है तो सबसे इजी हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, देख रहे हो ये ग्रामर है, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग दे दी है, तो आप क्या करोगे कि इसी स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए अपने सिंटैक्स ट्री डिराइव कर लिया। अगर आप डिराइव कर पा रहे हैं तो देयर इज नो सिंटैक्स एरर, नहीं कर पा रहे हैं तो एरर है। इज इट क्लियर? बट अगर ये स्ट्रिंग ही नहीं दी है, ध्यान से समझो, आपका क्वेश्चन ये है ना स्वप्निल,
ये सर अगर स्ट्रिंग नहीं दी है तो स्ट्रिंग नहीं दी है तो मैं कोई भी स्ट्रिंग सपोज करूंगा, सपोज इन द सेंस कैसे सपोज करूंगा, इस ग्रामर के बेसिस पे। जनरली वो दिया होगा आपके पास, बिना स्ट्रिंग के दिए हुए हम नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं दिया है तो हम लेट सपोज करेंगे कि सपोज इस स्ट्रिंग के लिए हम पास ट्री जनरेट करना चाहते हैं। सर तो हम लोग को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि किसी भी सिचुएशन में वो फेल तो नहीं हो रहा, मींस जो वो मतलब सिर्फ एक ऐसी ट्री फाइंड आउट करनी होगी जिसके लिए फेल हो जाए, तो फिर हम लोग बोल देंगे सिंटैक्स एरर है। वो वाली अप्रोच करनी पड़ेगी सर। हाँ, वही अप्रोच चलते हैं जो हम इसके पहले ऑटोमेटा में अप्लाई किए हैं। वैसे बट जनरली केस में आपको ये गिवन होगा, बट अगर नहीं भी दिया है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये जो गिवन ग्रामर है वो क्या स्ट्रिंग जनरेट करता है, वैसे ग्रामर तो बहुत सारी स्ट्रिंग जनरेट करता है, ठीक है, तो कोई भी एक स्ट्रिंग हम लेंगे उसमें से और उसके लिए हम सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री डिराइव करेंगे। अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तो देयर इज नो सिंटैक्स एरर, अगर नहीं हो पाता है तो सिंटैक्स एरर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, कि रिपीट करने की जरूरत है? आ गया समझ में? नो सर, रिपीट करने की नहीं है। रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर मैं सिंटैक्स ट्री डिराइव कर पाता हूँ देयर इज नो सिंटैक्स एरर, नहीं कर पाता हूँ तो सिंटैक्स एरर। अभी इसकी पूरी डिटेल में पूरी एल्गोरिथम है, अभी ये बेसिक डिफिनेशन चल रहा है, ठीक। अब आप लिखिएगा बॉटम अप पार्सर, पार्सर में क्या होता है, बॉटम अप पार्सर। उसमें थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा। इन ए बॉटम अप पार्सर पार्स ट्री स्टार्ट एट चिल्ड्रन, इन बॉटम अप पार्सर पार्स ट्री start at the children and proceed to root. That is a total reversal of a top-down parser. In a top-down parser, ठीक है, in a top-down parser we have started the root and go for the children. In a bottom-up parser, the pass tree started at children. Okay, the pass tree started at children and proceed to the root. बॉटम अप इस फॉर्म में चलेगा, ऐसे समझिए। पहले W इक्वल टू ए बी होगा, फिर हम देखेंगे ए कहाँ पे मिल पाएगा, बी कहाँ पे मिल पाएगा, एंड आफ्टर दैट फिर रूट तक प्रोसीड करेंगे। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? इट इज अ नॉर्मल डेफिनेशन। हाउ वी कैन मेजर स्टार्ट एट चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिखो दिस यूज द दैट इज ए स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करेगा ये? चिल्ड्रन। Start at children and go for the root. Is it clear by everyone? चिल्ड्रन से प्रोड्यूस करेगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गो फॉर द, ठीक है। अब थोड़ी सी एक चीज और पढ़ते हैं कि हाउ वी कैन डिराइव दिस वन, ठीक है। इन ए टॉप डाउन पार्सर, use the leftmost derivation. Is it clear? In a top down parser, use the leftmost derivation. In a bottom up parser, use the reverse of a rightmost derivation. Try to understand this one. What is the meaning of this? Now we have a proceed the bottom up parser. ठीक है, bottom up parser.
क्या करते हैं इन बॉटम वर्ड में, इन विच आई थिंक रिक्वायर्ड सम ठीक है, इट इज अ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इन विच और स्ट्रीम stored at the children ठीक है, start children and proceed to root and how it is a proceeds. For example, this is the bottom of this one, तो कैसे गिवन होता है ये ड्रॉ करके देखो। तो ऑलरेडी मुझे क्या होता है, हम चिल्ड्रन पे होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर इसके बाद इसका पूरी एल्गोरिथम समझेंगे। ए बी गिवन है, ठीक है, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस, द ए डिराइव फ्रॉम द कैपिटल ए। अभी इसको समझेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, बट जनरली सिग्निफिकेंस के लिए आप इतना समझ लीजिए, पहले के चिल्ड्रन से लेकर टॉप तक जाएंगे। एंड वेयर वी हैव फाइंड आउट दिस स्मॉल बी फॉर दिस डेरिवेशन, हियर वी हैव अंडरस्टैंड द बॉटम अप्रोच। कैसे करता है इसकी पूरी एल्गोरिथम है। अभी ये जनरल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं बॉटम अप में क्या कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके बाद चेक करूंगा क्या ए बी रूट है, क्या नहीं रूट नहीं है, क्योंकि ए बी से एस बी डिराइव हो पा रहा है। वी हैव रीच हियर and one more concept here we have associated. Is it clear everyone? Here we have used the approach from here, bottom to top. Is it clear everyone, or have you any doubt? Please ask the questions if you have anybody doubt. ठीक है, नो डाउट, नो डाउट, गुड। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ ली है कि ये जो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच है, ये यूज क्या करता है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, जैसे आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ से समझ में आएगा ये चीजें। देखिए, इन ए टॉप डाउन अप्रोच वी हैव यूज्ड हियर, दिस द रूट, ये आपका रूट है, एंड हम रूट से यहाँ पे जा रहे हैं, रूट से चिल्ड्रन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। बट एक सबसे कॉमन फिनोमेना आपको नहीं लग रहा है कि सर मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करूँ यहाँ पे या राइट मोस्ट करूँ, है कि नहीं। ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि जैसे यहाँ पे अभी तो सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था हमें, सर कोई डाउट नहीं है लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट है। बट अगर यहाँ पे देखिए सर एस डिराइव टू ए बी हो गया, ठीक है, समझो यहाँ पे ध्यान से, एस डिराइव टू ए बी। अब ए बी डेरिवेशन प्रोड्यूस कर रहा है एंड बी ऑल्सो प्रोड्यूस द डेरिवेशन, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना चाहिए, आप समझ पा रहे हैं स्वप्निल? यस सर ना। अब यहाँ पे देखो कंपाइलर को हमें बताना होगा, जैसे हमने क्या किया, एस हमने क्या किया, रूट में मेरे एस कितने थे, एक सिंगल एस थे, ध्यान से समझो, हियर इज द सिंगल एस, इज इट क्लियर। सिंगल एस से हमने क्या किया, ए एंड बी तो डिराइव कर दिया। अब देखिए इसके मैं डीपली समझ रहा हूँ ये काम कैसे करता है। अभी फंडामेंटल डेफिनेशन था, एस डिराइव टू प्रोडक्शन ए बी, हियर एस डिराइव टू प्रोडक्शन ए बी, एंड अगेन ए इज ए वेरिएबल एंड बी इज ए वेरिएबल। मुझे कैसे पता ए वेरिएबल है बी वेरिएबल है, क्योंकि ये कैपिटल में दिया हुआ है। इज इट क्लियर? सबको ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी चीज ग्रामर में कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब वो वेरिएबल है, इज ए कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग। स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो क्या है, टर्मिनल है। कैपिटल में लिखा है तो क्या है, वेरिएबल है। ये चीज सबको समझ में आ गई? इज इट क्लियर बाय एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। आर यू फीलिंग स्लीपी और नींद लग रही है क्या? नहीं लग रही है ना? नो सर। हाँ, गुड। ध्यान से समझो, किसी भी ग्रामर में, जैसे ये ग्रामर है, ध्यान से एक बार फिर से इसको समझते हैं। अब मैं डीपली समझ रहा हूँ, अभी तक हम डिफिनीशन सिर्फ समझे थे, क्या टॉप डाउन बॉटम अप। अब डीपली इस पे फोकस कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, ठीक है। इस पूरे ग्रामर में अगर मुझसे पूछे कि सर कितने वेरिएबल हैं, ये बता दीजिए आप, तो ये पता करने के लिए कि ग्रामर में कितने वेरिएबल हैं, हम ये देखेंगे कि जो गिवन ग्रामर है इसमें कैपिटल लेटर में क्या क्या लिखा गया है। तो कैपिटल लेटर में क्या क्या वेरिएबल है, बताओ मुझे जल्दी से।
एनीवन? ए बी? यस बी तो है, यस ए बी, एग्जैक्टली। यस ए बी क्या हुआ? वेरिएबल है। टर्मिनल कितने हैं? स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल भी दो। एग्जैक्टली। अब देखो हो क्या रहा है, मेरी बात यहाँ से ध्यान से समझो। अगर मैं टॉप डाउन पार्सर यूज कर रहा हूँ तो मुझे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। मुझे पास ट्री बनाना है, जो पास ट्री मैं बनाऊंगा स्टार्टिंग इज ए रूट। इज इट क्लियर? यहाँ पे रूट क्या है? रूट क्या है बताओ? मैं कर्सर भी रखा हूँ वहाँ पे। व्हाट इज ए रूट? एस, कैपिटल एस। कैपिटल एस मैंने यहाँ पे लिख दिया। इज इट क्लियर एवरीवन? कैपिटल एस यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब कैपिटल ए जितने भी प्रोडक्शन देता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, मैं यहाँ पे कैपिटल ए भी लिख दिया। इज इट क्लियर? और यहाँ पे कैपिटल बी भी लिख दिया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था मुझे, क्योंकि ये एक ही प्रोडक्शन दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पे दो प्रोडक्शन मुझे मिलना है, ए एंड बी, जो कि ग्रामर में भी अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? ए भी डिराइव कर रहा है, बी भी डिराइव कर रहा है। इज इट क्लियर? अब मैं कौन सा पहले चूज करूं? ठीक है, मैं ए वाले को पहले प्रोड्यूस कर दूं या बी वाले को पहले कर दूं? ये कंपाइलर को बताना होगा ना। आर यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? ब्रेथ वाइज यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या चूज कर सकते हैं? ब्रेथ वाइड ट्रैवर्सल बॉटम। अरे अभी उतने आगे की बात मत करो, अभी यहीं पे रहो। नहीं, यहीं पे इसी का है, इसी का पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अभी रुको उसको, बाकी लोग और बताओ। स्टीवन रे के स्टेप आगे पूछ लेता है। ब्रेस्ट वाइज अभी वो उनको पता ही नहीं है जो वर्ड आप बोल रहे हैं। ठीक, अभी ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं? सोल्यूशन पे मत जाओ अभी। हाँ, सबको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि मुझे एक तो डाउट हो रहा है, सर मैं पहले ए को सिलेक्ट करूं या बी को करूं? ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेट दिस पॉइंट? yes. ठीक है, हाँ। तो देखिए इसके लिए कुछ रूल डिफाइन है। मैं यही बता रहा हूँ कि जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ, पहले ये तो समझो उसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, दैट्स व्हाई द टॉप डाउन पार्सर ऑलवेज यूज द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। जो भी लेफ्ट में होगा पहले उसको सॉल्व करेगा। ये फिक्स किया गया है। ये क्यों किया गया है यही मैं आपको समझा रहा था। इज इट क्लियर? बट इससे फर्क क्या पड़ेगा कि पहले लेफ्ट वाले को करें या राइट वाले को? राइट। अभी ये बता रहा है। अभी जब ग्रामर में हम सॉल्व करेंगे इसको, तो फिर अभी ये चीज आप समझ पाएंगे कि पहले लेफ्ट वालों को सिलेक्ट करेंगे या पहले राइट। इस न्यूमेरिकल में तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बात तो ठीक है। व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? गुड क्वेश्चन। प्रतिभा ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो सर अभी इस केस में तो चाहे मैं लेफ्ट को ले लूँ या राइट में ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन न्यूमेरिकल्स में मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पे वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वो डिफरेंस आ रहा है। सम टाइम इट इज क्रिएट द, अभी के लिए प्रॉब्लम समझ लो, एम्बिग्यूटी एंड ऑल दिस थिंग्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए होता। ठीक है प्रतिभा, फिर कंपाइलर थोड़ा सा कंफ्यूज होता कि नहीं, मैं ये ए सेलेक्ट करूँ ये सेलेक्ट करूँ, दोनों ए है। चलो मैं दूसरे एग्जांपल में सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिंपली एम्बिग्यूटी की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो इसके लिए मुझे कंपाइलर को ये क्लियर करना होता है। अभी के लिए सिर्फ ये वर्ड समझ के रख लो, एम्बिग्यूटी के केस में आई हैव क्लियर दिस वन। ठीक, इसीलिए पहले से कंपाइलर को जो चीजें हैं वो ऑलरेडी फिक्स रखते हैं कि कैसे आपको मूव करना है, क्या प्रोसीड करना है। अभी एग्जाम्पल में भी आप अप्लाई करके देखेंगे, फिर समझ पाएंगे कि लेफ्ट ही क्यों रखना चाहिए था और राइट ही क्यों रखना चाहिए था। ये आपके कंप्यूटर एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ पे। तो एक चीज लिखना चाहो तो लिख लो, इन ए टॉप डाउन पार्सर लिख लो, इन ए टॉप डाउन पार्सर यूज द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। क्या यूज करता है? इन ए टॉप डाउन यूज द लेफ्ट, टॉप डाउन पार्सर यूज द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। आपके कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछा जाता है, व्हाट काइंड ऑफ ए डेरिवेशन यूज द टॉप डाउन पार्सर? द नेम इज अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इन ए बॉटम ऑफ पार्सर यूज द राइट मोस्ट डेरिवेशन, बट द ऑर्डर इज ए रिवर्स। इसीलिए ये ज्यादा पूछा जाता है कंप्यूटर एग्जाम में। ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उसका राइट मोड डेरिवेशन तो यूज कर रहे हैं, बट रिवर्स ऑर्डर में यूज करते हैं।
ये यहाँ पे लिख लो आप, द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज द, आफ्टर दैट टाइम हो गया आपका, ठीक है, दिस वन, द टॉप डाउन पार्शल यूज द रिवर्स ऑफ ए राइट मोस्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। बस बेटा क्लोज करा, एक 1 सेकंड बस, I close this recording right now.